everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with the introduction of chapter number 11. The name of the chapter is mensuration. So we have done part number 1 of introduction, right? So in that video we discussed the area and perimeter, right? The part which we have already done in class 7th. We discussed certain formulas of figures, right? बट अभी हमारे पास कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स भी है जिनका हमें एरिया पता होना चाहिए, ठीक है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट, बट बिफोर दैट वी विल बी डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में और एग्जाम्स में पुट अप हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमें डायरेक्टली गिवन होगा फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ऐसे नहीं गिवन होगा. हमें ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को रीड करके दैट वेदर वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर ऑफ दिस फिगर और द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. ओके, सो लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हमें एरिया निकालना है या फिर पेरीमीटर निकालना है, ये हमें पता चलेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द लेंथ ऑफ what is the length of fence surrounding it? Fence surrounding it. So children, we are given one figure. एक figure given है हमें. Let's suppose this is a square figure. एक square figure given है and we are asked to calculate the length of fence surrounding it. Now fence, what is a fence? Fence जैसे suppose this is a park, ये एक park है, तो उस park के all four corners पे एक fence लगाई जाती है so that no one can enter from top, ऊपर से कोई enter ना कर सके. So वो fence कुछ sides पे लगाई जाती है like this. Fence has nothing to do with the इनसाइड एरिया. इस एरिया से फेंस का कोई मतलब नहीं है, राइट. अब हमें पता है दैट हमें बाउंड्री से कंसर्न है. इस क्वेश्चन में हमें एरिया से कंसर्न नहीं है. इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी विल बी फाइंडिंग दी पेरीमीटर एंड नॉट एरिया. नाउ अब हमसे ये नहीं बोला गया यहाँ पे दैट कैलकुलेट द एरिया और कैलकुलेट द पेरीमीटर. It's just given that what is the length of the fence surrounding it. Fence कुछ ऐसे लगेगी यहाँ पे, right? So यहाँ पे fence अगर हम लगाएंगे, so it means we have to calculate the area, the length of the boundary. It means the perimeter. ठीक है? So ऐसे हमें observe करना है क्वेश्चन में क्या पूछा है and then we can automatically come to the conclusion that what we have to calculate. So ये कुछ first example था. Coming to one more example. Coming to second example, question number 2 में given है what is the region covered by the piece of land? What is the region covered by the piece of land, right? So what is the region covered by the piece of land? अब ये एक piece of land है, ठीक है. अब ये fence नहीं है इसमें. Now this is a piece of land. Again this is in a shape of a square, right? So now we have to calculate what is the region covered by the piece of land. मतलब उस piece of land ने कितना region cover किया है. Suppose we have this notepad, तो ये अगर इस notepad को मैं एक table पे रखूँगी, so what is the region covered by this notepad? So basically it means what is the area. तो हमें इसमें क्या calculate करना है? We have to calculate the area of this figure, right?
So you see how we observe the question and then we come to the conclusion कि हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है. So, इसमें अगर जब हमें रीजन पूछा है कवर्ड तो इट मीन्स हमें एरिया कैलकुलेट करना है. एंड इफ वी आर आस्क्ड टू पुट अ फेंस ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ अ पार्क इट मीन्स हमें उसमें पेरीमीटर निकालना है. सो दिस वाज सेकेंड एग्जाम्पल. कमिंग टू एग्जाम्पल 3 नाउ. So the third example says, so again we are given a park. ठीक है, एक स्क्वायर शेप में हमारे पास एक पार्क है. बट एंड वी ऑल्सो नो दैट चिल्ड्रन पार्क के ऑल 4 साइड्स पे एक पाथ होता है जिसमें हम वॉक कर सकते हैं. ठीक है, सो हमें वही वाला पाथ भी गिवन है. दिस इज दी पाथ, राइट. इस पाथ पे पीपल कैन वॉक और जॉग, राइट. सो ये जो हमारे पास path given है, we have to calculate the area of this path, right. So the third example says calculate the area of path. ठीक है, तो area of path means not the area of this whole park. ये तो पूरा पार्क है, इसमें ये जो है ये एरिया है पाथ का जिसपे लोग वॉक करते हैं एंड ये अंदर का एरिया है पार्क का. बट अब हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है दैट इज दिस एरिया. सी दिस एरिया एंड नॉट दिस होल रीजन. ठीक है, एरिया तो कैलकुलेट करना है बट सिर्फ इस पाथ का, राइट. सो गिविंग दिस अ नेम, इस पार्क को हम ABCD नेम देते हैं एंड इसको हम EFGH नेम देते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अब हमें इस पार्क का एरिया निकालना है. इट मीन्स अगर हम पार्क का एरिया निकालेंगे ABCD एंड उसमें से EFGH एरिया माइनस कर देंगे सो विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ पाथ ओनली. सी सपोज ये एक पार्क है. ठीक है, तो अब हम इस पूरे पार्क का एरिया निकाल देते हैं. दिस ये पूरा एरिया है पार्क का, राइट. दिस इज अ पार्क ABCD. ठीक है, एंड नाउ अब हम इसमें से EFGH माइनस कर देते हैं. दिस रीजन EFGH ये हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ दिस पाथ. ठीक है, ये EFGH है, दिस इज EFGH. ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस होल पार्क माइनस EFGH सो विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ पाथ. सो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू area of ABCD minus area of EFGH. Area ABCD minus area EFGH. So we'll get the area of path. So हमने इसमें यही किया, area of path equals to area of ABCD minus area of EFGH. अब ये जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, इसका जो दिस इज अ स्क्वायर, राइट. सो साइड और इसकी साइड हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, ओनली देन वी कैन सॉल्व. ठीक है, जब भी हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं जब हमें वैल्यूज गिवन होंगी. ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल जिसमें हमें कुछ एरिया ऑफ पाथ निकालना था, जिसमें हमें 2 एरियाज को माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एरिया ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड. जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसका एरिया निकालने के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ 2 फिगर्स. तो इसमें हमने ABCD में से EFGH को सबट्रैक्ट किया, राइट. So this was the third example, children. Coming to the fourth example. अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को. जैसे ये हमें एरिया ऑफ द पाथ पूछा था. ठीक है, इसके बाद हमसे ये पूछा है दैट व्हाट एक बैग से
4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया सीमेंट बैग से, ठीक है, बन सकता है। अब हमें इसको बनाने के लिए कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स required to make the path. So this is our fourth question जो हमसे एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू मेक दी पाथ when one bag will make 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। एक बैग से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया बन जाएगा, तो हमें ये बताना है कि ये पूरा पाथ कितने बैग से बनेगा। सो फॉर दैट ऑल्सो स्टूडेंट फर्स्ट विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ जो भी आएगा वो टोटल एरिया होगा जो हमें बनाना है, एंड वन बैग से बनेगा 4 सेंटीमीटर, तो जो वो टोटल एरिया होगा वो कितने बैग से बनेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय dividing. See how we'll divide. Number of bags equals to area of path. Area of path जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अपॉन एरिया कवर्ड बाय वन बैग I hope this is clear. Area of path upon area covered by one bag. See, supposed area of path comes out to be 24 centimeter square. ठीक है, अब 24 centimeter square is the total area of this path, and हमें पता है कि one bag से बन रहा है 4 centimeter square. So 24 upon 4 centimeter square कर देते हैं. So we'll get 4 6 24. So it means 6 bags would be required to make the path. So basically see, अब हमने इस फोर्थ एग्जाम्पल में क्या किया, we are given the number of cement bags required to make the path when one bag equals to 4 centimeter square. टोटल पाथ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है वन बैग से, ठीक है। तो फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बैग से बनेगा, 24 अपॉन 4, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 6। इट मीन्स 6 बैग से पूरा पाथ बन जाएगा, ठीक है। सो ये था एक एग्जाम्पल जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड। इट मीन्स हम उसमें पहले वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया कैलकुलेट करेंगे उस ऑब्जेक्ट का, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड, या फिर हमसे कभी कभी पूछा होगा नंबर ऑफ फेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल। जैसे हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, देन वील बी मूविंग ऑन टू फर्दर क्वाड्रिलेटरल्स जिनका हमें एरिया पता होना चाहिए। सो कमिंग टू फिफ्थ एग्जाम्पल। So in this children we are given a circular park. एक हमारे पास सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इन अ शेप ऑफ अ सर्कल हमारे पास एक पार्क है, एंड उसके अंदर हमारे पास स्क्वायर शेप्स में 2 फ्लावर बेड्स हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर बेड्स? मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स को हमने ग्रो किया हुआ है। सो यहाँ पे
in this circular park we have two square shaped flower beds, right? So अब हमें we have to grow grass on the rest of the park, ठीक है? यहाँ पे तो flower beds already grown है, अब हमें इस area में क्या grow करना है? Grass in this area. So we have to calculate the area, हमें कितने area में grass grow करनी है. So simply हमें इस area of park में से minus करना है area of two flower beds, ठीक है? So this is, suppose this is A, B, C, D and this is E, F, G, H, ठीक है? So basically हमें area of circle, चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं. So the question is area of grass to be grown, ठीक है? So area of circle जो पूरा सर्कल है माइनस area of ABCD मतलब फ्लावर बेड 1 माइनस area of EFGH मतलब फ्लावर बेड सेकेंड. तो ये अगर हमने ऐसे इसको बना दिया सो इट मीन्स हमारे पास एरिया आ जाएगा ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जिसमें हमें ग्रास ग्रो करनी है, ठीक है? सो यू गॉट इट. अब एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ EFGH के लिए हमें यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन होगी. सपोज इसकी लेंथ 5 है, ठीक है? और सर्कल के एरिया के लिए हमें रेडियस भी गिवन होगा. तो ये सब हमें क्वेश्चन में given होगा. only then we can calculate the area of circle and area of two flower beds and calculate करके जब भी हम उसको माइनस कर पाएंगे, ठीक है? so this was certain type of questions जो हमें एक्सरसाइज में और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे and that we have to know that किस में हमें एरिया निकालना है, किस में हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है? so this was something about area and perimeter. now coming to some quadrilateral जिनके हमें एरिया पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर द एरिया. सो कमिंग टू वन quadrilateral, द नेम ऑफ द quadrilateral इज trapezium. Now coming to one quadrilateral trapezium. Okay, so ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम की हमने कुछ प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर थर्ड चैप्टर. यू रिमेंबर द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? उसमें भी हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज करी थी. लेट्स रिकॉल. सो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम इज, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ ट्रेपीजियम चिल्ड्रन. दिस इज अ ट्रेपीजियम and the property is that at least one pair of opposite sides are parallel. What does this mean? See, at least one pair of opposite sides are parallel. Parallel means two lines which never meet, which never intersect each other, ठीक है? सो अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें ऑपोजिट साइड्स की, सो अगर हम इनको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे. इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. ये इंटरसेक्ट हो गई ना यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट जाके. एंड इफ वी टॉक अबाउट दीज टू लाइंस, तो ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट 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 जाते रहेंगे एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ओके, एंड नेवर मीट ईच अदर. ये ऐसी स्ट्रेट स्ट्रेट जाती रहेंगी. व्हाट डज दिस मीन? दैट ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं.
तो अगर हमारे पास एक ट्रेपीजियम में एक क्वाड्रिलेटरल में एक भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऐसे पैरेलल है, इट मींस इट इज अ ट्रेपीजियम. ठीक है, सो ये है एक ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल. ठीक है, अब ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, बट ये दोनों साइड्स ऑलवेज पैरेलल जाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम. कमिंग टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चिल्ड्रन. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए देखो, पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच. हाफ ए प्लस बी इंटू एच. अब ये ए बी और एच क्या है, लेट्स सी. ए मीन्स दी साइड. ए का मतलब क्या है, दी साइड ऑफ द ट्रेपीजियम. सी, दिस इज ए, ये है साइड ऑफ द ट्रेपीजियम. बी इज अगेन दी बेस ऑफ द ट्रेपीजियम एंड H means again height. तो हाइट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये साइड तो हाइट नहीं हो सकती. ठीक है, सो ये साइड है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. सो बेसिकली द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ. ठीक है, हाफ कर देंगे, हाफ में कोई दिक्कत नहीं है. इनटू ए प्लस बी मतलब साइड प्लस बेस. साइड और बेस को ऐड करेंगे, देन इनटू हाइट कर देंगे. सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. अब ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. ठीक है, अब ये है कुछ न्यू जो हम 8th में कर रहे हैं, ये 7th में नहीं था, राइट. सो ये हमें बेसिकली हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ठीक है, एंड द property of trapezium is that at least one pair of opposite sides should be parallel to each other, right? So this was something about trapezium. Coming to the next quadrilateral, which is a rhombus. Okay, now coming to the next quadrilateral, which is a rhombus. So rhombus, we all know that rhombus is something like this, जिसमें all the four sides are equal. ठीक है, अब all the four sides are equal, which means that ये four sides equal है. ठीक है, and four sides तो equal हैं and diagonals, ये दोनों इसके diagonals हैं. This is D1, diagonal 1, and this is D2, diagonal 2, right? So area of rhombus is half into D1 into D2. So this is the area of rhombus, right? So basically इसमें ना हमारे पास ज़्यादा पेरीमीटर एंड ऑल तो बहुत डायरेक्ट निकल जाता है. सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर सिंपल होता है, तो सिर्फ हम एरिया का फॉर्मूला जो है वो लर्न करते हैं. सो एरिया ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ rhombus is half into D1 into D2. Now for this, diagonal 1 and diagonal 2 will be given in the question. Only then you can find the area, right? So the area of the rhombus is half into D1 into D2. ठीक है, so this is the area of
rhombus. ठीक है, सो अभी हमने वी टॉक्ड अबाउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, देन वी टॉक्ड अबाउट द एरिया ऑफ rhombus, right? So now coming to a formula for the area of a general quadrilateral. ठीक है, suppose in the question we are given that find the area of this quadrilateral. ठीक है, एक quadrilateral है, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो अब हमें ये नहीं गिवन कि ये ट्रेपीजियम है या फिर ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, व्हाट इज इट, और इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, सो हमें जस्ट ये गिवन है कि हमें इसका एरिया निकालना है. सो वी कैन नॉट सपोज नाउ जस्ट बिकॉज ये ट्रेपीजियम दिख रहा है इट डजंट मीन इट इज अ ट्रेपीजियम, राइट? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये ट्रेपीजियम है, इट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रेपीजियम. ठीक है, सो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सो फॉर दैट वी हैव अ जनरल फॉर्मूला जो एक क्वाड्रिलेटरल में हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज दिस इज ए बी सी डी. ठीक है, सो हम इसको डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे ए सी. ठीक है, सो ए सी इज द डायगोनल. नाउ अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल्स में कट हो गया. वन ट्राइंगल इज ए डी सी एंड द अदर वन इज ए बी सी. बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ करी इससे ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. सो ट्राइंगल ए डी सी में देखो, ट्राइंगल ए डी सी में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ तो ठीक है, बेस है ये, दिस इज द बेस. ठीक है, एंड हाइट दिस इज द हाइट, राइट? एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें अगर ये बेस है तो हाइट यही तो होगी. वी हैव डन दिस इन आवर लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, राइट? सो ये हाइट है, सो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसमें ये हो गया हाफ इंटू ए सी बेस है एंड हाइट, राइट? एंड इन ट्राइंगल अब करते हैं बात ए बी सी की. ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल में अगर ये बेस है, वापस से बेस तो वही है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा इसका भी एरिया. ठीक है, सो बेस यही है, सो अब हाइट क्या होगी? नाउ दिस वुड बी दी हाइट. आई होप दिस इज क्लियर. इस वाले ट्राइंगल में ये बेस है तो हाइट यही तो होगी. सो अगेन दिस विल बी हाफ इंटू ए सी इंटू एच. देखो यहाँ पे ये जो हाइट थी उसको h1 लेते हैं और इसको h2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो दिस विल बी हाफ इंटू ए सी इंटू h2. ये हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू h1. सॉरी, दिस इज h1 एंड दिस इज h2. ठीक है, सो एक तो हमारे पास अब ये है, वी हैव दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो बेसिकली अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो बाय एडिंग वी विल गेट एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, देखो हाफ भी सेम है, ए सी भी सेम है, तो हाफ और ए सी को हम डायगोनल लिख सकते हैं. सो हाफ इंटू डायगोनल h1 प्लस h2. ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सो इन दोनों को हमने किया बेसिकली ऐड. देखो इनको ऐड करके हमारे पास आएगा हाफ इंटू ए सी इंटू h1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू h2. सो हाफ और ए सी कॉमन ले सकते हैं बिकॉज सेम है. सो हाफ इंटू ए सी h1 प्लस h2, राइट? और ए सी को हम डायगोनल लिख सकते हैं बिकॉज ए सी इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सो इसलिए हमारे पास आ गया हाफ इंटू डायगोनल h1 प्लस h2. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ जनरल
क्वाड्रिलेटरल। सो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन कि ये ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सो हम उसको एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला से वी कैन solve it for the area. Okay, so with this children we have completed general quadrilateral also. Okay, so now only one topic is left, which is solid shapes. नाउ सी, अब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन. ठीक है, सो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन आवर पार्ट 3 ऑफ आवर इंट्रोडक्शन वीडियो. ओके, सो टिल देन इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, इफ देयर इज स्टिल एनी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन आवर कमेंट सेक्शन below. All right, and don't forget to like and share this video. I am signing up here. I'll be coming up with a new video soon. Thank you.